শুক্রবার মালদার দুই বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে নির্বাচনী জনসভা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিজেপির হাই ভোল্টেজ জনসভার মঞ্চ থেকে একের পর এক ইস্যুতে জোরদার আক্রমণ শানালেন তৃণমূল কংগ্রেস সহ ইন্ডিয়া জোটের বিরুদ্ধে। শুক্রবার দ্বিতীয় দফায় যখন উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, রায়গঞ্জ ও বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ চলছিল, ঠিক তখনই মালদায় নির্বাচনী জনসভা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। উত্তর মালদার বিজেপি প্রার্থী খগেন মুর্মু এবং দক্ষিণ মালদার বিজেপি প্রার্থী শিরূপা মিত্র চৌধুরীর সমর্থনে প্রধানমন্ত্রীর জনসভা অনুষ্ঠিত হয় পুরাতন মালদার শাহপুর বাইপাস সংলগ্ন নিত্যানন্দপুর মাঠে। জনসভা বেলা 11টা থেকে শুরু হলেও তার অনেক আগে থেকেই জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দলে দলে বিজেপি নেতাকর্মী সহ সাধারণ মানুষজন সভাস্থলে ভিড় জমান। সকলের চোখে মুখেই চরম উৎসাহ আর উদ্দীপনার ছবি ফুটে ওঠে। সভাস্থলে হাজির বিজেপি নেতাকর্মীরা প্রধানমন্ত্রীর আগমনের প্রতীক্ষায় প্রহর গুনতে থাকেন। ঘন ঘন মোদী এবং জয় শ্রীরাম স্লোগান দেন। অবশেষে পূর্ব নির্ধারিত সূচি মেনেই সকাল 10:45 বায়ুসেনার হেলিকপ্টার চেপে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মালদায় পৌঁছান। তিনি সভাস্থল থেকে কিছুটা দূরে হেলিপ্যাডে অবতরণ করে সোজা গাড়িতে চেপে সভামঞ্চে পৌঁছানো মাত্রই জেলা বিজেপি নেতৃত্ব প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানান। সকলে মিলে মোদী মোদী স্লোগান দিয়ে সভাস্থল মুখরিত করে তোলেন। मोदी जी स्वागतम, मोदी जी स्वागतम, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। এরপর মালদার দুই বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে সভামঞ্চে বক্তব্য রাখতে ওঠেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি শুরুতেই রাজ্যের তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সুর চড়ান। टीएमसी के राज में बंगाल में एक ही चीज चलती है, हजारों करोड़ के स्कैम, शारदा चिटफंड स्कैम, रोज वैली चिटफंड कैंप, पशु तस्करी घोटाला, नगर पालिका नियुक्ति घोटाला, राशन घोटाले, कोयला तस्करी घोटाले टीएमसी करती है और भुगतान ये बंगाल के जनता को पड़ता है। যুব সমাজকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা, 26,000 ছেলে মেয়ের চাকুরি চলে যাওয়ার মতো ইস্যুতেও তৃণমূলের বিরুদ্ধে তিনি সরব হন। साथियों, टीएमसी ने यहां युवाओं के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ किया है। इन्होंने इतना बड़ा शिक्षा घोटाला किया, 26,000 परिवारों की रोजी रोटी ठप हो गई। বিজেপি সরকারের নীতির কারণে দেশের উন্নয়ন অগ্রগতির কথা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি তিনি মালদার আম ও মাখনাকে কেন্দ্র করে ফুড প্রসেসিং ফ্যাক্টরি গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দেন। बीजेपी सरकार की नीतियों से देश में नए नए सेक्टर्स बन रहे हैं कि हमारे मालदा के किसानों का आम और मालदा के किसानों का मखाना पूरी दुनिया में फेमस है। उनकी आमदनी बढ़े, उन्हें ज्यादा पैसा मिले, इसके लिए यहां फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाएंगे। বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্প লুট, কেন্দ্রের প্রকল্প রূপায়ণে বাধা দানের মতো নানান অভিযোগ তুলেও প্রধানমন্ত্রী রাজ্যের তৃণমূল সরকারকে এক হাত নেন। मैं केंद्र से बंगाल के विकास के लिए यहां की सरकार को जो पैसा भेजता हूं, वो टीएमसी के नेता, मंत्री, तोलाबाज मिलकर खा जाते हैं। जो योजनाएं मैं सीधे लागू करने की कोशिश करता हूं, उसे भी टीएमसी सरकार रोक देती है। इन्होंने बंगाल के लोगों को 5 लाख रुपए तक के
मुफ्त इलाज देने वाली हमारी आयुष्मान योजना को रोक रखा है। टीएमसी को आपकी चिंता से, आपकी परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है। নারী নির্যাতন ইস্যুতেও রাজ্যের তৃণমূল সরকারকে তুলোধনা করেন প্রধানমন্ত্রী। साथियों, मां, माटी, मानुष की बात कहकर सत्ता में आई टीएमसी ने सबसे बड़ा विश्वासघात यहां की महिलाओं से किया है। संदेश थाली में महिलाओं पर इतने अमानवीय अत्याचार हुए और टीएमसी सरकार आखिर तक मुख्य आरोपी को बचाती रही। यहां मालदा में भी महिला के साथ शर्मसार करने वाली घटना घटी। এছাড়াও তুষ্টিকরণ ইস্যুতে তিনি একযোগে কংগ্রেস এবং তৃণমূলের বিরুদ্ধে জোরদার আক্রমণ শানান। साथियों, टीएमसी और कांग्रेस यहां आपस में झगड़े का दिखावा जरूर करती है, लेकिन सच्चाई ये है कि दोनों के विचार और आचार व्यवहार एक जैसा है। तुष्टीकरण के लिए ये दोनों पार्टियां कुछ भी कर सकती है। टीएमसी और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो सीएए कानून को रद्द कर देंगे। साथियों, मैं आपको इंडी गठबंधन के एक और खतरनाक इरादे के बारे में बताना चाहता हूं। इंडी गठबंधन वाले महिलाओं, आदिवासियों और गरीबों के खिलाफ एक खतरनाक कानून बनाकर लेकर आने चाहते हैं। इस कानून में महिलाओं का मंगलसूत्र, आदिवासी महिलाओं के गहने, हर किसी की प्रॉपर्टी जांच कराने का ये कांग्रेस वालों ने ऐलान किया है। इसके लिए कांग्रेस के शहजादे विदेश से आई एक्सरे मशीन लाए हैं। वो पूरे देश में सबका एक्सरे कर देंगे। कांग्रेस का इरादा है कि जिसके पास जितना पैसा, सोना, चांदी होगा, जमीन होगी, सब पर कब्जा कर लिया जाएगा और फिर उसका एक हिस्सा ये लोग अपने वोट बैंक को दे देंगे। সবশেষে মালদার দুই কেন্দ্রেই বিজেপি প্রার্থীকে বিপুল ভোটে জয়ী করার আবেদন জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। साथियों, आपका एक वोट विकसित भारत, विकसित बंगाल के सपने को पूरा करेगा। मालदा उत्तर से बीजेपी प्रत्याशी और लोकसभा में मेरे बहुत अच्छे साथी श्रीमान खगेन मुर्मू जी और मालदा दक्षिण से श्री रूपा मित्रा चौधरी जी, जिसको आप निर्भया दीदी के नाम से जानते हैं। ये हमारी निर्भया दीदी और हमारे मुर्मू जी 7 मई को इनको आपका एक एक वोट जो देंगे ना, ये आपका वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा।